FBDs बोलते हैं इनको, कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। ऑलमोस्ट एवरी गुड न्यूमेरिकल जो आप करोगे, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। So you can read free body diagrams are drawn. Free body diagrams are drawn to find the accelerations, to find the acceleration of bodies in the system, or to find the unknown forces in a given numerical, or to find the unknown forces in a given numerical, to find the acceleration of bodies in the system, or to find unknown forces in the given numerical. Rules. So you can write free body diagrams are the force diagrams. Free body diagrams are the force diagrams. Our first rule is we separate all the bodies in the system. We separate all the bodies present in the system and draw separate diagram for each body. We separate all the bodies in the system. जैसे कल हम एक एग्जाम्पल किया था M1, M2, M3, तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाया था. We separate all the bodies in the system and draw separate force diagram for all the bodies. Second rule. In FBD of a body, we mark all the forces which are acting on the body. We mark all the forces which are acting on the body along with their direction. In FBD for a given body, we mark all the forces which are acting on the body along with their directions. No force which is exerted by the body should be marked. No force which is exerted by the body should be marked in its FBD. We mark all the forces which are acting on the body along with its direction. No force which is exerted by the body should be marked in the diagram. So forces acting on the body mark करनी है, forces exerted by the body mark नहीं करनी. Third is make the components of forces acting on the body in horizontal and vertical direction. Make component of forces acting on the body in horizontal and vertical direction. Make component of forces acting on the body in horizontal and vertical direction.
Third point is find the net force acting. Find the net force acting in horizontal direction and vertical direction. Find net force acting on the body in horizontal and vertical direction. Find the net force acting on the body in horizontal and vertical direction. Thus, from Newton's second law, net force acting in horizontal direction is if it's summation fx. And net force acting in vertical direction is Fy. So this is MAY. Total acceleration will be आपसे रूल्स कोई नहीं पूछेगा कि रूल्स क्या होते हैं, आपको इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट कि हाउ टू फाइंड द फोर्सेस. से जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, से फॉर एग्जांपल यू हैव मान लो मेरे पास ऐसे एक से ये दीवार है और इसके साथ मैंने दो ब्लॉक्स प्लेस कर दिए. दो ब्लॉक्स प्लेस कर दिए लाइक एक 20 kg का ब्लॉक प्लेस किया यहाँ पे और एक ये 10 kg का ब्लॉक. इस पे मैंने एक फोर्स लगाई 100 न्यूटन और एक फोर्स मैंने 20 kg पे लगाई. से 50 न्यूटन की. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं find the force of interaction between the two blocks, force exerted by the ground on the two blocks, force exerted by wall on 20 kg. बेसिकली सारे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हूँ. 10 kg ने 20 kg पे कितनी फोर्स लगाई है, 20 kg ने वॉल पे कितनी लगाई है, वॉल ने 20 kg पे कितनी लगाई, ग्राउंड ने 10 kg पे कितनी फोर्स लगाई और ग्राउंड ने 20 kg पे कितनी फोर्स लगाई. ठीक है, ऐसे हमारे को डायग्राम दिया. डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं इसका. देन वी विल सी हाउ यू अप्लाई द कंसेप्ट्स कि एफ फिजिकल और एम में जो आप पढ़ते आ रहे हो लाइन से उसका करना क्या है हमने. डायग्राम बना लो, देन क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं. Two blocks are kept in. डायग्राम ठीक से बनाना, बड़ा कर देता हूँ मैं. Two blocks are kept in contact with each other as shown in figure. Find the force exerted by ground and wall
on the two blocks. Find the force exerted by ground and wall on the two blocks. Also find the force exerted by 10 kg on 20 kg. हमने जो रूल लिखे उसमें लिखा कि सिस्टम में जो बॉडीज है उनका अलग अलग डायग्राम बनेगा. सेपरेट ऑल द बॉडीज इन द सिस्टम. तो इसमें दो बॉडीज थी, एक 10 kg की, एक 20 kg की. दोनों को हमने सेपरेट कर लिया. से 10 kg की बॉडी है, ये 20 kg की बॉडी है. इनका अब अलग अलग डायग्राम बनना है. मार्क ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. along with the direction. सारी फोर्सेस जो 10 kg पे लग रही हैं वो मार्क करनी है along with their directions. 10 kg पे सबसे पहले तो ये फोर्स लग रही है 100 न्यूटन. एक इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स mg. ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है r1. 20 kg 10 kg पे फोर्स किधर लगाएगा? 10 20 पे किधर लगाएगा? राइट साइड. 10 20 पे राइट साइड. तो 20 10 पे लेफ्ट साइड. So force exerted by B on A. Say B block, A block. 20 kg पे अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और कौन सी फोर्सेस मार्क करनी है इस पे? सर एक जो 10 kg के कारण लगा रहा है. 10 kg के कारण किस डायरेक्शन में मार्क करूं और कितनी? राइट साइड. और सेम जो 10 kg पे लग रही है और ये रहेगी अभी 50 न्यूटन. सर ये दो डायरेक्शंस में नहीं. कितनी में फोर्स मार्क करूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी, वर्टिकल में कितनी? सर वर्टिकल में 2. वर्टिकल में 50 cos थीटा. फिफ्टी साइन 30. देखो पहले फोर्सेस कोई मिस तो नहीं है. अब ये इधर मूव कर सकता है इस फोर्स के कारण, ये जो लग रही थी. ये तो बिल्कुल क्लियर है कि राइट साइड तो जा नहीं सकता बिकॉज राइट साइड पे दीवार है. लेफ्ट साइड को आ सकता है इस फोर्स के कारण. नो सर. इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? ये 50 न्यूटन का. 50 साइन 30. 50 साइन 30 मींस 25. 25. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? 100. 100. तो ये तो कम है ना 25 न्यूटन. ये ज्यादा है, मतलब इधर से ज्यादा फोर्स लग रही है, तो इट कैन नॉट मूव. ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा. अगर ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, यू हैव टू फाइंड ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस. मतलब R1 निकालना है, R2 निकालना है, FBA निकालना है. कितना है? R1 R2 एंड FBA as
net external force in horizontal direction is towards right. Where motion is constrained due to wall because दीवार आ गई. Where motion is constrained due to wall, both the blocks will remain at rest. जो डायग्राम दिया है इसके अकॉर्डिंगली राइट तो जा नहीं सकते. राइट कोई फोर्स लग रही थी, उधर दीवार है, वो नहीं जा सकते. ये ऊपर नीचे जा सकते हैं. इज इट पॉसिबल कि इनमें से कोई ब्लॉक ऊपर या नीचे चला जाए? अगेन नीचे ग्राउंड है, नहीं जा सकता. ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता. ऊपर कैसे चला जाएगा? आप किसी ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टली, ऊपर थोड़ी चला जाएगा. सो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी जीरो ही है. अगर मैं फर्स्ट बॉडी को देखूं 10 kg, अगर R1 ज्यादा होता 10G से तो ये ऊपर जाता या नीचे? ऊपर. ऊपर. 10G ज्यादा होता तो ये नीचे आता. बट ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब R1 कितना हो गया? 10G. 10G. Minus the direction opposite. मैं -100 लिख दूं यहाँ पे? लिखूं? लिखूं कि नहीं लिखूं? यहाँ पे -100 लिख दूं? नहीं. क्यों ना लिखूं? आप में से कोई बोल रहा था, ध्रुव बोल रहा था मेरे ख्याल से लिखूं माइनस. लिखूं कि ना लिखूं ध्रुव? सर वो डायरेक्शन मतलब वो नीचे मैं लिखूं कि नहीं लिखूं ये बता. मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर चाहिए मेरे को. माइनस लिखूं या ना लिखूं? सर वो मैग्नीट्यूड का शायद नहीं है. मैं लिखूं कि ना लिखूं? सर मैंने वेक्टर साइन डाला है? नहीं डाला तो यहाँ माइनस नहीं आएगा कभी भी. कभी भी स्केलर को मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड थोड़ी नेगेटिव में होता है. R2. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जो 20 kg वाला ब्लॉक है उस पे हमने जो FBA फोर्स मार्क की है वो 10 kg वाले ब्लॉक में लगाई है, राइट? हाँ जी. तो सर अब अगर वो बॉल के साथ लगा हुआ है तो फिर वो कुछ फोर्स वॉल पे भी तो लगाएगा, तो वॉल का भी तो रिएक्शन आना चाहिए. वो फोर्स मार्क नहीं करेंगे? हाँ तो वो भी करेंगे ना जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है. अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट बॉडी पे फोकस कर रहे हैं. R2 वर्टिकल फोर्स कितनी होगी? वर्टिकल फोर्स कितनी होगी? So 20 plus 50 cos 50 30 cos plus 30. 20G. 50 cos 30. Upward force should be equals to downward force. 50 cos 30 plus 20G जो भी आएगा 200 plus 25 root 3. सॉल्व कर लेना जो भी आता है. Okay, what about FBA? फर्स्ट बॉडी से देख के बताना, सेकेंड को हमें नहीं देखना. फर्स्ट बॉडी FBA 50 sin 30. ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा. इस पे हॉरिजॉन्टली दो फोर्सेस लग रही हैं. 100 न्यूटन टुवर्ड्स Right. Right. राइट एंड FBA टुवर्ड्स लेफ्ट. और अगर ये मूव नहीं कर रहा तो FBA कितना? 100 न्यूटन. ठीक है. ये
Yes, sir. Yes, sir. अब अभी तक हमने निकाली ग्राउंड की फोर्स और एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जो लगाई। अब इस बॉडी को अगर हम देखें, इसके इधर दीवार बनी थी, जो इसकी मोशन को रोक रही थी। ये दीवार पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी ये वाली बॉडी? Right side. Right Right. side. तो दीवार इस पे रिएक्शन फोर्स कितनी लगाएगी? Left side. वॉल ने कितनी फोर्स लगाई? लेफ्ट। Left. तो ये मैं इसकी इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखूं तो एफ बी ए शुड बी इक्वल्स टू, राइट साइड पे एफ बी ए, लेफ्ट साइड पे दो फोर्सेस हैं, तो एफ बी ए किसके इक्वल हुआ? एफ डब्ल्यू प्लस, 50 sin theta. तो एफ डब्ल्यू कितना हो गया? फोर्स exerted by wall is 75 न्यूटन। देखो ध्यान से सारा कुछ, बिकॉज अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है जिसमें डायग्राम बनाया हमने इसमें निकाला कि एक ब्लॉक ने दूसरे पे कितनी फोर्स लगाई, ग्राउंड ने ब्लॉक पे कितनी लगाई, वॉल ने ब्लॉक पे कितनी लगाई। अभी सिस्टम को मेरे को सिंप्लीफाइड रखना था, इसलिए मैंने आगे दीवार बना दी। ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, बिकॉज पहला सिस्टम होता है जिसमें मूव नहीं कर रहा, एंड सच सिचुएशंस आर नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम कहते हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। A body is said to be in translational equilibrium if net force on the body is zero or if its acceleration is zero. So there's a case of translational equilibrium जहाँ पे net force body पे zero act कर रही है। Just एक बारी ध्यान से देख लो, otherwise I will do the next question. Excuse me, sir. हाँ जी, FW की वैल्यू 100 न्यूटन ही है। किसकी वैल्यू? फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल। फोर्स exerted by the wall तो 75 है, ये 100 है, ये क्योंकि हमने यहाँ निकाल ली 100 FBA, तो ये 100 is equal to FW plus 25। सर मुझे ये नहीं पता चला, वो आपने 20 kg वाली बॉडी पर FBA कैसे लिखा, मतलब कि वो FBA कैसे फोर्स लग रही ये है, कौन सी फोर्स थी? जो बी ने ये ए फोर्स, पर लगाई। तो ए बी पे किधर लगाएगा? अच्छा ठीक है सर। रिएक्शन फोर्स तो ये मार्क करोगे ना? ये नहीं लिखना चाहिए था FAB। अगेन मैंने इधर वेक्टर साइन डाला है? नहीं डाला, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इधर वेक्टर साइन डाला था, ये मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का सेम ही होगा। हाँ जी ठीक है सर। मैं वेक्टर साइन डालता तो मैं माइनस एफ बी ए लिखता, उसको फिर भी एफ ए बी नहीं लिखता। नेक्स्ट, फाइंड द normal reaction at point A and B. Find the normal reaction at point A and B from the figure shown. Find the normal reaction at point A and B from the figure shown. आपको ऐसे फिगर गिवन है,
डायग्राम ध्यान से देख लो। हमारे पास ये दो सपोर्ट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं। इनके ऊपर मैंने एक स्फीयर रख दिया। सो ये पॉइंट बी है, ये ए है। इधर और इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस 1 मीटर दिया है। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट कुछ दे देता हूँ मैं आपको, से mg ले लो यहाँ। इसका वेट लेट मी सी अगर क्वेश्चन में दिया है तो। टेन kg इसका वेट दिया है, 10 kg स्फीयर का। अब दो बॉडीज नहीं है, एक ही बॉडी है स्फीयर। इस पे हमने सारी फोर्सेस मार्क करनी है जो एक्ट कर रही हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ इट्स डायग्राम कि इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। और ये अगेन इट्स अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इस पे नेट फोर्स जो है दैट इज 0। सो इट्स अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज ऐसे रखा हुआ ऊपर, बस मूव नहीं कर रहा कहीं, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्सेस बताओ कैसे मार्क करें? फोर्सेस कैसे मार्क करूं मैं? सबसे पहले बॉडी का वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। इस स्फीयर पे Downward. ग्रेविटेशनल फोर्स 10g। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है? और कौन कौन सी फोर्स लग रही है? रेडियस इसका 5 मीटर है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। और कौन सी फोर्स लग रही है? ए पॉइंट पे जो एज है वो स्फीयर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? यहां पे, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। मैं अगर इस एज के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मतलब इस सरफेस के, तो वो कहां से पास करना चाहिए? सेंटर। तो एक होगी ये नॉर्मल रिएक्शन Na, और एक हमने निकालना है नॉर्मल रिएक्शन यहां पे। हमें Na और Nb की वैल्यू बतानी है। Na और Nb की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ आया? कंपोनेंट्स किसके बनेंगे, 10g के या Na और Nb के? NAMB. बिकॉज 10g तो ऑलरेडी वर्टिकल है, उसके कंपोनेंट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको ना अलग जगह पे ऐसे साइड पे बनाता हूँ एक डायग्राम। Sir, ये check Nb, again. ये Na, ये 10g, यही तीन फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं इस एंगल को लूं, लेट इट बी θ1, तो दिस वुड बी Cos theta. NA sin theta. सिमिलरली अगर ये एंगल θ2 है, NB cos theta 2. NA cos theta 2. अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं?
फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कब आएगी? Na cos थीटा 1 और nb cos थीटा 2 इनकी डायरेक्शन सेम है ऑपोजिट? Opposite. अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0. तो यही तो पूछा है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होगी जब Na cos थीटा 1 और nb cos थीटा 2 इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकल इक्विलिब्रियम सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है? 100 Newton. 10 100 न्यूटन 10 जी। वर्टिकल डायरेक्शन में NB sin theta 2 plus NA sin theta 1. दो इक्वेशंस, वेरिएबल्स कितने? थीटा 1 थीटा 2 पता है? थीटा 1 थीटा 2, ये जो रेडियस 3 मीटर 1 मीटर दिया था, यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 निकल आएगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं थोड़ा डायग्राम फिर से इसको बड़ा करता हूँ, इसको देखना। ये डिस्टेंस कितना है पूरा? 5. 4 4, और ये कितना है? 5. 5 5। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये किसकी वैल्यू है? 4/5 cos थीटा की? 37 डिग्री 37 डिग्री 37 ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा की 4/5 या sin थीटा की 4/5? Cos theta. इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, ये 3 ये 5, ये एंगल कितना होगा? sin थीटा इज, यहां से sin थीटा कितना आ गया? ये एंगल 5. 37 ये 37 है, तो ये भी 37 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल कितना है? 37 तो ये एंगल 37 कितना हो गया? 50 3. अब देखो तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। अब ये एंगल 53 है और ये 37 है। अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल दूं, Na cos 37, cos 37 मतलब सॉरी Na cos 53, cos 53 की वैल्यू Nb cos 37, तो मेरे पास ये आ गया Na is equals to 4/3 Nb, Na is equal to 4/3 Nb, 100 is equals to 4/3 Nb, sin 53 is 4/5 plus Nb into sin 37 is 3/5। यहां से Nb की वैल्यू आ जाएगी, एक ही चीज रहेगी Nb, बाकी सब तो पता है। 16/15 Nb plus 3/5 Nb, Nb आ जाएगा यहाँ से, Nb आ जाएगा तो इधर से Na भी आ जाएगा। बस यही निकालना था Na और Nb की वैल्यू। एंड दिस इज व्हाई आई एम्फसाइज्ड वेक्टर्स आने चाहिए। वेक्टर्स के बिना कुछ नहीं आएगा फिजिक्स में, बिकॉज अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते, यू कांट मेक द कंपोनेंट्स, यू कांट मेक द कंपोनेंट्स, यू कांट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। सो नॉन इवैल्यूएटिव है, चाहे उसमें पेपर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बिना वेक्टर्स के फिजिक्स नहीं आ सकती। देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ, तो ये सबको समझ आ रहा है। मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर से क्यों पास किया? नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर से क्यों पास किया? नो सर. नहीं आया। अच्छा, अगर मेरे पास एक मान लो स्फीयर है, मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो कहां से पास करेगा? स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दूं, Center. सेंटर से। तो प्रॉपर्टी होती है स्फीयर और सर्कल की, तो मैंने वो यूज की है।
कि स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाओगे एंड नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो इट विल पास थ्रू सेंटर ओनली. सर ये आपने 10 ग्राम कैसे लिखा? 10 ग्राम नहीं 10 kg, तो mg कितना हो जाएगा? 10 into g. ये mg है, 10 ग्राम नहीं है. g is not gram, g is acceleration due to gravity. ओके सर. Next to right. So 1 minute, please. ऐसे एक सिस्टम दिया मेरे को कि एक रिंग है, रिंग इस रॉड के ऊपर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी 50/3 मीटर पर सेकेंड. अगर ये रिंग इधर मूव करेगा तो ये जो ब्लॉक ए है ये अपवर्ड्स मूव करेगा या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड. अगर ये रिंग इधर मूव करता है तो दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स with a certain speed va. Find va. कि अगर इसकी स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड क्या होगी? सिस्टम समझ आ रहा है ना? ये रिंग है, रिंग के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच किया है, ये पुली है, पुली के इधर एक ब्लॉक अटैच्ड है. तो हमने बताना है अगर रिंग इधर मूव करना शुरू कर देता है, ये ब्लॉक की स्पीड से नीचे आएगा. क्वेश्चन सबको समझ आया? यस सर. Yes, sir. फाइंड va. Find va. It's more of a logic. Doesn't require free body diagram. It's a logical question. अच्छा, अगर मैं ऐसे 2 पॉइंट्स मार्क करूं, मान लो एक पॉइंट मैंने इधर मार्क किया P1,
मेरे को सिर्फ ये बताओ P1 और P2 की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट? Same. Same. क्यों? आप लॉजिकली सोचो, अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर आएगा तो ये 2 सेंटीमीटर ही नीचे आएगा. The concept is velocity along the string should be same. हमारे को इसकी वेलोसिटी रिंग की दी थी 50√3, सॉरी 50/3. ये एंगल दिया था 53, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर ये v है, ये 53 है, दिस विल बी, तो इसकी वेलोसिटी भी यही होगी. बिकॉज अगर P1 की वेलोसिटी v cos 53 है, तो ये भी v cos 53 होगी. v cos 53 means 50/3. So block A will move down with 10 meter per second. Block A will move down with 10 meter per second. The concept is speed of all points along the string should be same. Speed of all points along the string should be same. Because जब हम एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम यूज करते रहेंगे कि along the length of string speed same होनी चाहिए. एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ. You have a table. The question is, at any instant, if speed of m1 is 2 meter per second, find speed of m2. At any instant, find speed of m2. जो स्ट्रिंग्स है इनको हम हमेशा मान के चलेंगे, जो जो भी आपने स्ट्रिंग लगाई हुई है, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज assumed to be, बिकॉज ये कभी लिखा नहीं होगा तो ये खुद से assumption होती है. Massless and inextensible. Inextensible का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच नहीं हो सकती. स्ट्रेच नहीं हो सकती. तो मेरे को ऐसे ये फिक्स्ड पुली है, ये पुली मूव कर सकती है, तो ये अगर नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड?
राइट साइड राइट से है ना, ये वैल्यू निकाल दो इसकी बस। v1 दिया है, 2v2 कितना होगा? दो पुलीज हैं, पुली P1 जो है ये फिक्स्ड है और ये जो पुली P2 है ये मूवेबल है, बिकॉज इसको फिक्स्ड शो किया हुआ है, टेबल के साथ अटैच है, किसी चीज से अटैच नहीं है। कैसे करें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सही बोलो। तो डिपेंड नहीं करेगा कि M1 M2 में से किसका मास ज्यादा है। मैंने तो कहा M1 नीचे जा रहा है, आपको क्या लेना है वो क्यों जा रहा है? उसका मास ज्यादा होगा तभी ज्यादा है, मैंने तो एरो भी दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। और अगर चलो यही बात करते हैं पहले, अब अगेन मेरे को तो लॉजिक पे बहुत हैरानी होती है आपके। मान लो M1 का मास है 1 kg, ठीक है, M2 का मास है 50,000 kg, M1 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? M1 का मास है 1 kg, M2 का मास है 50,000 kg, will M1 move down? Yes, M1 फिर भी नीचे ही आएगा। मैं M2 को वहां पे, मतलब यहाँ पे अगर मैंने एक चूहा बांध दिया ना M1 की जगह, M2 की जगह हाथी बांध दिया, तो भी चूहा हाथी को खींच के ले आएगा। अब ध्यान से डायग्राम तो देखो मैंने क्या बनाया है। तो इससे नहीं फर्क पड़ना कि M1 का मास कितना है, M2 का मास कितना, M1 ने नीचे ही जाना है। वैसे ऐसा क्यों? कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? मैंने बताया, आप में से किसी ने पूछा नहीं ना क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हाथी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ चूहे पे ही लग रही है। सिर्फ चूहे पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, हाथी पे नहीं लगेगी। प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होता, एक्सक्यूज मी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होगा। सर, ये अब तो इसको जब अगर रॉकेट क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो हमें ऊपर खींच ही लेते हैं वो। आपको ऊपर कौन खींचता है? सर रॉक क्लाइंबिंग में जाते हैं तो वो आपको एक जगह से ऊपर खींच सकते हैं ना, अगर आप रॉक कौन क्लाइंबिंग। खींचता है? कौन खींचता है? सर जो ऊपर बंदा है। बंदा है। M2 तो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग। सर वो फुल टाइम अपनी पावर थोड़ा ना लगाता है, उसको पकड़ के हम नीचे जाते हैं अगर उसका वेट ज्यादा प्रैक्टिकली। तो यहाँ फिर कैसे? यहाँ फिर कैसे? क्योंकि डेली लाइफ में फ्रिक्शन होती है, अभी हम फ्रिक्शन नहीं ले रहे। M2 का कुछ भी वेट हो उससे फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज M2 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो M2G किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड्स। M2 पे नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। M1 पे नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? M1G तो डाउनवर्ड्स, M1 पे नॉर्मल रिएक्शन, M1 पे नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं, वो किसी चीज पे थोड़ी पड़ा है। नॉर्मल रिएक्शन तो होता है जो टेबल ने ब्लॉक पे फोर्स लगाई, वो तो हवा में हैंग कर रहा है, तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? तो उसका वेट बैलेंस नहीं होता, जो टेबल पे ब्लॉक पड़ा उसका वेट बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन से, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना वेट है। पर मैं अभी उसमें जा ही नहीं रहा, मैं तो फोर्स के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ M1 अगर नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो M2 किस वेलोसिटी से या स्पीड से राइट साइड को मूव करेगा? सेम। कोई हेल्प कर सकता है मेरी तो बताओ। सर सेम ही होना चाहिए। सेम ही होना सर चाहिए। हाफ होएगा।
हाफ होएगा। क्यों हाफ क्यों होएगा? हाफ क्यों होगा? नो मेरे को जो भी सर, बोल रहे हो ना, सेम, हाफ, डबल, वन थर्ड, सर वन सेम फोर्थ, इसलिए होगा क्योंकि अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग भी उतने से ही जाएगी। बिल्कुल स्ट्रिंग नहीं 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगी। तो सर अटैच्ड वो भी अच्छा साथ ये में बताना, ये जो पुली P2 है, पुली P2 और M2, इनकी स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम हो ये सबको समझ में आ रहा है कि P2 की और M2 की स्पीड सेम होगी? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि पुली अगर 1 सेंटीमीटर राइट साइड को आती है तो मास भी 1 सेंटीमीटर ही राइट साइड को आएगा। तो पुली की और M2 की स्पीड सेम है, ये बिल्कुल क्लियर है सबको। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। Yes, sir. ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं ऐसे लेता हूं, इसका पुली से डिस्टेंस P1 से लेट इट बी x1, और P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस लेट इट बी x2। मैंने ये डिस्टेंस x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये दोनों के डिस्टेंस मैंने फिक्स्ड पुली से लिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यहां से लेके ये सारी एक ही रस्सी है, ये डिफरेंट है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। x1 + 2x2 ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. मैं अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या था? इनएक्सटेंसिबल, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगी, तो dl/dt 0। अब मेरे को बताना है यहाँ पे dx1/dt, x1 किसका डिस्टेंस था? इसको रीजन मान लो, इसको P1 को आप ओरिजिन मान लो, लेट इट बी ओरिजिन। तो ओरिजिन से m1 का डिस्टेंस कितना है? x1। तो dx1/dt किसकी वेलोसिटी, m1 की या m2 की? M1 m1 और इस पुली का डिस्टेंस x2, तो dx2/dt किसकी वेलोसिटी? m2 तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज ये 0 है तो मैं कह सकता हूं dx1/dt इज ट्वाइस ऑफ dx2/dt। नेगेटिव साइन उनकी डायरेक्शंस बताएगा, मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। dx1/dt is velocity of m1, this is twice of velocity of m2। अगर ये 2 है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचते तो आप कर सकते थे। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये 10 सेंटीमीटर, ऐसे एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं वैल्यू, अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आता तो ये लेंथ कितनी बढ़ जाती स्ट्रिंग की? 12 Plus 10। तो इन दोनों की लेंथ 10-10 कम होती या 5-5 कम होती? 5 5 5 मतलब ये 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 5 ही मूव करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा आधी है। लॉजिक यही है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग 2 बार ही घूमी हुई है, तो अगर x1 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी x1 + 2x2। अगर मैंने x1 को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो x2 में क्या चेंज आएगा? x1 को मैंने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ये x1 तो कैंसिल हो गया, -5
तो वहाँ -5, मतलब ये 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये 5 कम हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड हाफ ही होनी चाहिए। ये उसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। मेजॉरिटी, अनलेस आप कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट 1-2 फिजिक्स के पढ़ते हो जो IIT के लिए नीट के लिए बने हैं, उनमें ये चीजें दे रखी होंगी, बट ये किसी आपको, जिनको मैं देसी बुक्स बोलता हूँ, नहीं मिलेगा। बीट, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न, एनसीईआरटी, कुछ नहीं दिया हुआ उसमें इसके बारे में। वो एज्यूम करते हैं कि ये तो आपको आना ही चाहिए और इसको यूज कर लेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। एनसीईआरटी भी यूज कर लेगी ऐसी चीजों को न्यूमेरिकल्स में, बट यू शुड नो कि आ कैसे रही हैं चीजें, सो दैट यू कैन गेट द फील ऑफ इट, और ऐसे रट्टा ना मारना पड़े। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे इतना पहले समझ के देखना आज वाली क्लास का, बिकॉज कुछ चीजें नहीं की है। नशा की डेफिनेशन तो आप कर ही लोगे, बट ये जो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन किए हैं ना, दोबारा एक बार ही देखना। और नहीं आएगा तो प्लीज मेरे से पूछना, और मेरे से मैसेजिंग में ना पूछा करो, हर चीज मैसेजिंग में नहीं एक्सप्लेन हो सकती। आप क्लास के शुरू में पूछ लिया करो या क्लास के एंड में, बिकॉज मैसेजिंग में कई बार, बिकॉज मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा बहुत सारी। तो आप मेरे को ऐसे पूछोगे क्लास के पहले या क्लास के बाद, तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ चीजों को, या मतलब बता सकता हूँ। मैसेज तो मैं कितने बड़े बड़े टाइप कर सकता हूँ फिजिक्स के लिए। तो इट्स बेटर, अगर आपके पास डाउट है आप उसको नोट कर लो, क्लास शुरू होने के टाइम पे मेरे से यहाँ तो शुरू में पूछ लो, यहाँ जब क्लास खत्म हो जाएगी तब पूछना, बीच में मत पूछना बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर लाइक हमने अभी फोर्सेस के एग्जांपल्स के, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, तो उसमें लाइक विंड चलती है तो ड्राई लीव्स जो भी जमीन पे थे वो उड़ते हैं, तो वो वो तो फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स है ना, वो तो हवा लग रही है, वो फील्ड के कारण थोड़ी उड़े, वो तो एयर के मॉलिक्यूल्स ने जाके उनको टक्कर मारी है। वो ऐसे नहीं उड़ रहे, वो फील्ड के कारण थोड़ी उड़े हैं, वो तो हवा के मॉलिक्यूल्स जाके कोलाइड कर रहे हैं तो उड़ रहे हैं।